comes from the state of Maharashtra. The Katai-Nilje flyover, popularly known as the Palava flyover, was inaugurated on July 4th, but now it is in shambles. Marketed as a vital link to ease traffic congestion between Shilpata and Kalyan, the flyover has now quickly drawn criticism just after its inauguration. On the very first day of its opening, 2 bikers skidded on its surface and sustained minor injuries. And now in just a few days, commuters are labeling the flyover as a skidding zone, citing loose gravel, muddy stretches, cement spills and also unevenly laid tar as serious safety hazards. Now viewers, the 562-meter long flyover, constructed at a cost of about 250 crore, has come under scrutiny just 4 days after its opening to the public. A staggering 450 meters of the stretch is already showing poor signs of construction quality. Now contractors from the Maharashtra State Road Department Development Corporation have been working on site throughout the day, hurriedly patching up hazardous sections to address the safety concerns that have been raised by citizens now. Visuals on your screen showing you the poor condition that the highway is in currently, just days after its inauguration. Now, as of now, contractors from the Maharashtra State Road Development Corporation, they have been working on site throughout the day to hurriedly patch up the hazardous sections that have been raised by citizens, but it already shows signs of poor construction quality just days after its inauguration. Remember, this 562-meter long flyover was constructed at a cost of about 250 crore, and it has come under scrutiny just days after it was opened to the public. People have cited loose gravel, muddy stretches, cement spills and unevenly laid tar as serious safety hazards. Now joining me on this story is my colleague Shubham Pandey. So Shubham, you've been tracking this story on the ground. Help us understand. Now this bridge, it comes after years of delay, and then just days after its inauguration, it has become a skidding zone. So at this point, it seems like a clear case of administrative negligence. बिल्कुल, देखिए कई सारे सवाल इस वक्त वो ब्रिज बनाने वाले कंपनी के ऊपर इस वक्त खड़े होते दिखाई दे रहे हैं कि कुछ दिन पहले जब ब्रिज को इनॉग्रेशन किया गया था लोगों के लिए, पहली बरसात में देखिए वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे जो है वो दिखाई दिए। क्या जो सीमेंट और जो कंक्रीट जो यूज़ किया गया था वो उसमें क्या कोई क्वालिटी खराब थी, ये भी एक बड़ा जाँच का विषय इस वक्त बनते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल जाँच के आदेश दिए हैं कि इतनी जल्दी पहली बरसात में ही ब्रिज पर इतने बड़े बड़े गड्ढे, जो पलावा ब्रिज है जो थाने में आता है, वहाँ पर इस तरह के गड्ढे आखिर कैसे हुए। चंद घंटों की बरसात, क्योंकि सड़कों पर हम देखते हैं कि गड्ढे तो, लेकिन ये ब्रिज, ये फ्लाईओवर ब्रिज है जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक लोगों को लेकर जाते हैं, वहां पर इस तरह की जो गड्ढे बने हैं, इसको लेकर कई सारे सवाल अब जो एमएमआरडीए हैं, जिसने ब्रिज बनाया है, जिस कंपनी को ठेका गया था, और ऑफिसर्स पे कई सारे सवाल जो है इस वक्त खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल ये किस तरीके का भ्रष्टाचार है ये भी सामने आ रहा है कि कितना बड़ा करप्शन है। क्योंकि अगर आप ब्रिज के ऊपर देखिए तो जो लो क्वालिटी में सीमेंट और लो क्वालिटी में जो रेती होती है वो इस्तेमाल किया गया था। इसी के चलते जो पहली कुछ घंटे की बरसात में, और आप देखिए कि ब्रिज के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो हो जाते हैं, और इसका जो असर है वो वाहनों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ऐसे समय में एक्सीडेंट जो हैं वो भी होते हैं, क्योंकि गड्ढे होते हैं, बरसात होती है, लोगों के बाइक जो है स्लिप हो जाते हैं, और इसी वजह से ये जो गड्ढे बने हैं अब इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इसे किस तरह से बनाया गया था, इतनी जल्दी बनाया गया तो उसमें क्या क्वालिटी का चेक नहीं किया गया था, कि क्योंकि इसमें जो गड्ढे बनाए गए हैं उसमें जो मटेरियल यूज किया गया था वो भी इसकी जांच की जाएगी, उसके सैंपल लिए जाएंगे, उसके बाद ही इसकी रिपोर्ट जो है वो सरकार को जो है या उस डिपार्टमेंट को जो है वो सौंपी जाएगी। सही कहा शुभम, जैसा कि आपने कहा इस समय कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रोसेस था, क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हुआ था, कि कुछ दिनों के बाद जब ये ब्रिज इनॉग्रेट हुआ इतने सारे गड्ढे उस पर आ गए हैं, स्किडिंग जोन बन गया है, जो लोगों की लाइफ है वो खतरे में जा सकती है इसकी वजह से। क्या सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन आया अभी तक इस पर?
बिल्कुल, देखिए जांच के आदेश दिए गए हैं। सरकार जांच के यही कर रही है कि आखिर इसमें जो इंजीनियर हैं जिन्होंने ये रोड ब्रिज बनाया था, उसमें जो खराबियां आएंगी उसको लेकर भी जांच दिए गए हैं कि आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों हुई है। जो सीमेंट होते हैं, जो रेती होते हैं, वो मटेरियल जो यूज़ किया गया था वो किस चीज़ का था, क्या जल्दी जल्दी इनॉग्रेशन के चक्कर में इसे जो है बनाकर तैयार कर दिया गया, तो ये भी जाँच का विषय है। लेकिन फिलहाल अब उस इंजीनियर के खिलाफ जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन सभी को इस जाँच के रडार में जो है लाया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर ये ब्रिज क्यों बनाया गया था। ब्रिज बनाया गया तो उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया था वो कितनी लो क्वालिटी का था, ये भी चेक किया जा रहा है। उसके बाद जब ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद ही देखना होगा किस तरह से कार्रवाई होती है। ऑल राइट शुभम, लास्ट क्वेश्चन जो है कि आपने बोला कि ये हो सकता है एक हेस्टी डिसीजन था जो इनॉग्रेट हमने जल्दी कर दिया, मगर इस ब्रिज को हमने देखा है कि ये ऑलरेडी काफ़ी डिले के बाद इनॉग्रेट हुआ था, राइट? सो डू यू थिंक इलेक्शन को मद्देनजर रखते हुए ये डिसीजन लिया गया? बिल्कुल, देखिए बहुत सालों के बिल्कुल देखिए लोकल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हैं कुछ ही महीने में, इसी वजह से बरसात के मौसम में हैवी ट्रैफिक होती है। ट्रैफिकों से लोगों को निकालने के लिए, उनको एक अच्छी फैसिलिटी देने के लिए इस ब्रिज का उद्घाटन कर दिया। लेकिन ब्रिज में जब उद्घाटन किया गया तो लो क्वालिटी का जो रीति सीमेंट होता है, जो लो कॉन्क्रीट के जो मटेरियल्स है वो यूज़ किए गए थे। इसी वजह से इस ब्रिज पर आप देखिए कि कुछ घंटों की बरसात में वहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे जो हैं वो हो जाते हैं, पॉथहोल्स हो जाते हैं और इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। आपने उनकी सहूलियत के लिए, चुनाव के लिए ब्रिज का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन उसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया वो बहुत लो क्वालिटी का। इसी वजह से अब जाँच का विषय है, सुर्खियां बनी हुई है कि आखिर इस ब्रिज में जो मटेरियल यूज किए गए थे वो कहां से लाए गए थे और इतनी जल्दी भी क्या थी, क्योंकि चुनाव में भी 3-4 महीने का वक्त है। आपने लोगों के फायदे के लिए तो शुरू कर दिया, लेकिन क्या जो आपने लोगों के ध्यान नहीं रखा, क्योंकि लो क्वालिटी उसमें बाइक के एक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो पोथोल्स होते हैं उसमें जब व्हीकल्स जाते हैं तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे कई सारे जो है इस वक्त सवाल इस वक्त खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं।